الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں، اس دنیا میں آخرت میں خیر و برکت، آسانیاں، خوشیاں، خوشحالیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ ساری گفتگو بے شک کھلے ذہن سے آج کل کا جو ہمارا سیاسی پس منظر ہے، الیکشن ہے، اس کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ دین کی ہمیں کیا ہدایات ہیں، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام کو قبول کرنے سے مسلمان بنے ہیں۔ یہ الگ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کا تصور ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں مذہب کا تصور ہے۔ ہم نے دین کو مذہب کا پیرہن لباس پہنا کر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، دیگیں کھڑکاؤ، یہ کرو، عمرے کرو، یہ کرو، وہ کرو، صدقات و خیرات کرو، جی بڑے پکے مسلمان، بڑے مسلمان، کمال ہو گیا۔ جبکہ دین یہ نہیں ہے۔ یہ دین، یہ اسلام کا وہ حصہ ہے جو مذہب پر مشتمل ہے، عبادات اور رسوم و رواج پر جو مشتمل ہے۔ شادی کے وقت آپ کیا کیا رسمیں ہیں اسلام کی وہ کرنی ہے، موت کے وقت کیا رسمیں آپ نے وہ کرنی ہے، لیکن دین کیا ہے؟ کبھی ہم نے کوشش کی، ابھی ہمارے بھائی میاں صاحب اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، تو میں نے آج جمعے کے اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہی بات کریں گے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے سیاسی عمل میں حصہ لینا ہے، دین کیا تقاضا کرتا ہے آپ سے۔ حالانکہ مذہب کا جو حصہ ہے، پورشن ہے، اس کا معنی ہے عبادات، رسوم و رواج جو اسلام میں ہے، اور دین نظام کو کہتے ہیں، نظام حکومت ہے، نظام معیشت ہے، نظام معاشرت ہے، نظام عدل ہے، اور کاروبار، نظام کاروبار ہے۔ دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے احکام، تمہارا قانون اسلام کے مطابق ہو۔ ابھی
सियासी जद्दोजहद हो रही है ना, चल रही है। वोट मांगने वाले आएंगे, मेरे और आप में से कितने कोई ट्रांसफर की फरमाइश करेगा, मेरे बच्चे का, भाई का मेरा तबादला करवा दे, वोट दे दूंगा। कोई गली पक्की करवाएगा, कोई पुली बनवाएगा, कोई सड़क का मुतालबा करेगा, कोई नौकरी का मुतालबा करेगा। मैं आज से आपको पहले बता रहा हूं, ये जो महाजर आप बैठे हो इन्हीं की आपकी बात कर रहा हूं। मैं देखूंगा इलेक्शन के बाद आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा कि आप में से किसने कहा मेंबर से कि इस्लाम के निजाम के लिए वादा करके जाओ कि तुम इस्लाम के लिए काम करोगे। मैं आपसे पूछूंगा। हालांकि अल्लाह ने सूरह शूरा के आयत नंबर 13 फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहयना इलैका। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने वही दीन मुकर्रर किया है जो नूह अलैहिस्सलाम का था और जो वही के जरिए ऐ नबी आपकी तरफ भेजा गया है। पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम, आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बीच में वमा वस्सा बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और इसी का हुक्म अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। और वो हुक्म क्या था सारे नबियों को? अन अकीमुद्दीन, कि जाओ दीन को कायम करो। नबियों को तो यही हुक्म था। हम कहते नबियों को हुक्म होगा, हमें क्या लगे जी, उनकी जिम्मेदारी थी। तो दीन को कायम करना दो हिस्से हैं। दीन अगर कायम नहीं है तो दीन को कायम करना, और दीन अगर कायम है तो दीन को कायम रखना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, फर्ज है। ये कौन सी इस्लाम है, ये कौन सी मुसलमानी है कि नमाजें, रोजे, हज, ज़कात तो पूरे कर रहे हैं, ऊपर दीन जो कानून है वो कुफर का है, वो शिर्क का है, उसके नीचे हुकूमत चल रही है। तो निजाम अदल को कायम करना, इस्लामी निजाम अदल को, इस्लामी निजाम हुकूमत को, इस्लामी निजाम कारोबार को, इस्लामी निजाम मईशत को कायम करना, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि किसने हिम्मत करके वादा लिया कि वोट के लिए इस्लाम के नाम पर कुछ नहीं मैं मांगता तुझसे। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है कि उनके गुलामों में से वो देखते ना जो अच्छी नमाजें पढ़ रहा है उसको आजाद कर देते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर, जो गुलाम अच्छी नमाजें पढ़ता था उसको आजाद कर देते थे। किसी ने पूछा, किसी ने कहा हजरत ये आपको धोखा देने के लिए अच्छी नमाजें पढ़ दे, चलो नमाजें अच्छी पढ़े आजादी तो मिल जाएगी। ये आपको धोखा देते हैं, आजादी के लिए अच्छी नमाज पढ़ते हैं, अपनी मुसलमानी के तौर पर अच्छी नहीं पढ़ रहे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं नमाज के नाम पर धोखा खाने को तैयार हूं, फिर भी ये नमाजें अच्छी पढ़े मैं आजाद करता जाऊंगा। इस्लाम के नाम पर अगर धोखा खाते हो तो खा लो, ये बेहतर है। क़यामत के दिन अल्लाह को ये तो कह सकेंगे, अल्लाह मैंने तो तेरे नाम पर वोट दिया था, मैंने तेरे निजाम पर वोट दिया था, मैंने अपने ईमान पर वोट दिया था। और हुक्म है अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू, फरमाया हमने वही दीन जो नूह अलैहिस्सलाम को दिया था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा, जिसका हुक्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था, जिसका मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, जो ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है,
आखिरी पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम, आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीच में 3 नबियों रसूलों का जिक्र। वही दीन जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ये कायम करो, वही दीन जिसका मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इसको कायम करो, वही दीन जिसका ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इसको कायम करो। 1,24,000 में से सिर्फ 3 का जिक्र। वजह, इस वक्त भी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई, इस वक्त भी दुनिया में ये 2 ही बड़े दीन हैं। जो सबसे बड़ा दीन है, दीन इस्लाम है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो ये आयत नाज़िल हुई थी कुफारे मक्का के लिए। फरमाया तुम दावा करते हो कि तुम इब्राहिम की औलाद हो, इब्राहिम का दीन भी इस्लाम था। यहूदियों तुम दावा करते तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, मूसा अलैहिस्सलाम का भी दीन इस्लाम था। ईसाइयों तुम दावा करते हो कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, ईसा अलैहिस्सलाम को भी हमने यही हुक्म दिया था अन अकीमुद्दीन। इन सबको एक ही हुक्म हमने दिया था कि दीन को कायम करना है। और फिक्रा आयत शुरू कहां से हुई थी? आयत शुरू हुई शरअ लकुम मिनद्दीन। ऐ मुसलमानों, जमा का सीगा है, ऐ मुसलमानों हमने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए वही दीन जिसका नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, जो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, और जो ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस दीन को कायम करना है। आपके सामने खाना रख दिया जाए, आपको भूख लगी हुई है, खाना रख दिया जाए, आप उसकी तारीफ कर रहे, बर्तन बड़े प्यारे हैं, सोने चांदी के, मार्बल के, बहुत अच्छे हैं, बर्तन बड़े प्यारे हैं, खाना बड़ा खुशबूदार है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा पका हुआ, दिखने में बड़ा अच्छा है, उसकी आप सिफात, ये खाना प्रोटीन है, लामियात है, विटामिन है, इसमें बहुत है, ये बड़ी ताकत देता है, इसका ये फायदा, इसका फायदा, इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, आप गिनवाते जाओ। लेकिन अगर आपको खाने की इजाजत ना मिले तो उस फायदा खाने का मुझे बता दो। अरे इस्लाम के आप फायदे बताते हो, इस्लाम का ये फायदा, ऐसा दीन, ऐसा दीन, ऐसा दीन, अगर आपने अमल नहीं करना, उसको नाफिज नहीं करना, उसको कायम नहीं करना, तो फिर उसका फायदा। कोई एक मुसलमान भी अपने ऊपर नाफिज करने को तैयार नहीं है। हमारा वतीरा बन गया, हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि इस्लाम में यह है तुमसे दूसरों का नहीं पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारा पूछा जाएगा कि तुमने अपने ऊपर नाफिज किया या नहीं किया। मेरे से मेरा पूछा जाएगा, आपसे आपका पूछा जाएगा। और तैयार रहें फिर आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे, दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल मुशरिकून। 2 दफा ये आयत नाज़िल हुई। सूरह अल-फतह की आयत नंबर 28, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन। वो अल्लाह ही है जिसने अपना रसूल भेजा, दीन हक देकर, सच्चा दीन देकर भेजा कि इसको नाफिज करो, इसको गालिब करो, इस दीन का निजाम कायम करो। 13 साल मक्का में तरबियत की उस दीन को नाफिज करने के लिए, उस दीन के वर्कर तैयार किए 13 साल मक्का में, और मदीना में आकर चंद सालों में दीन कायम हो गया, निजाम कायम हो गया, इस्लाम का निजाम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और दीन हक, सच्चा दीन देकर। दीन निजाम को कहते हैं, निजाम हुकूमत को कहते हैं, निजाम अदल को कहते हैं, निजाम मईशत को कहते हैं। तुम्हारे सारे कवानीन इस्लाम के मुताबिक हो, इसको दीन कहते हैं। ये नहीं कि नमाजें
कौन रोकेगा? किसी को क्या एतराज है आपकी नमाजों से? किसी गैर मुस्लिम को एतराज नहीं। आप नमाजें पढ़े, नफल पढ़े, रोजे रखे, आप हज करें, ज़कात दें, किसी को कोई एतराज नहीं। हाँ, एतराज है तो इस पर कि आपको इस्लामी निजाम नहीं कायम करने देंगे, वो इस पर उन्हें एतराज है। और बड़ी अफसोस की और शर्म की बात है कि इस पर मुसलमान को भी अब एतराज, वो भी कहता है इस्लाम के मुताबिक नहीं चल सकता मैं। गैर तो गैर रहा, मुसलमान भी इस्लामी कानून के मुताबिक चलने को तैयार नहीं। वो भी अपने आप को समझता है कि ये मेरे लिए नहीं निजाम है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके अंदर रहकर चल नहीं सकता, जिंदगी गुजार नहीं सकता, इसके अंदर रहकर कामयाब नहीं हो सकता। हालांकि अल्लाह ताला ने अपना नमूना भेजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निजाम को नाफिज किया और उस निजाम को कामयाबी से चलाकर कामयाब जिंदगी गुजार कर अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के साहबा गए दुनिया से। तो फरमाया अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू, अल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों तुम्हें ये दीन इस्लाम भेजा है, ये वही दीन है जो नूह का दीन था, जो मोहम्मद का दीन है, जो इब्राहिम का दीन था, जो मूसा का दीन है, जो ईसा का दीन है। ये दीन एक ही है, सारे नबियों को एक ही हुक्म था कि दीन इस्लाम को कायम करना है। अब आप क़यामत के दिन या कब्र में सवाल होगा तो क्या कहेंगे? जी ये नबी और रसूलों की जिम्मेदारी थी, हमारी तो जिम्मेदारी है ही नहीं है, हम तो सिर्फ नमाजें पढ़ेंगे। आपकी नमाज से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि मजहब पर भी मुसलमान मजहब में भी बट गए। कोई कहता है इधर हाथ बांधो, कोई कहता है इधर बांधो, कोई कहता है टोपी के बगैर नहीं होती, कोई कहता है ये करो, वो ना करो, ये करो। अरे ये तो फिकी इख्तलाफ था। पढ़ने दो नमाज, रोजा रखने दो, हज करने दो, ज़कात देने दो, उम्रा करने दो, जैसे करता है अपने फिका के मुताबिक करता है। कोई ना कोई रवायत, कोई ना कोई बुनियाद तो है उसके पास। लोगों को दीन से मुतनफर करने वाले ना बनो, लोगों को दीन में दाखिल करने वाले बनो। अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू, अल्लाह ने हुक्म दिया कि दीन को कायम करो। कायम का क्या मतलब? खड़े हुए को, जो बंदा खड़ा होता है उसको कहते हैं कायम है। क़याम, हम क़याम में खड़े होते हैं ना, क़याम, खड़े होने को क़याम कहते हैं। और कायम, खड़ा करने वाला। अकीमुद्दीन, दीन को कायम करो। दीन तो गिरा पड़ा है, उसको खड़ा करो, नजर आए दीन तुम्हारा। कहां इस्लाम नजर आ रहा है हमें? अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू, दीन को कायम करो और फिरकों में ना बटो, जमातों में ना बटो, टोलियों में ना बटो, ग्रोहों में ना बटो। दीन को कायम करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाया सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद, उलमा ने हदीस में आया कुरान है, अल्लाह की रस्सी से मुराद सहाबा कराम फरमाते इस्लाम है, अल्लाह की रस्सी से मुराद सहाबा कराम फरमाते दीन है। कुरान मुराद लो, फिर भी कुरान भी दीन भी तो कुरान है, कुरान दीन है, दीन कुरान है। अरे दीन को, कुरान को खड़ा करो, कायम करो, उसके हुक्म को नाफिज करो, उसके हुक्म को चलाओ। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तार के कुरान होकर। हम इतने मुसलमान हैं, अरे अपनी बेटी को विरासत से महरूम कर देते। कौन सी गैरत है हमारे में? अपनी बहन को विरासत में हिस्सा देने को तैयार नहीं, अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा देने को तैयार नहीं, अपनी मां बेवा है उसको हिस्सा देने को तैयार नहीं। हमारे यहां रिवाज नहीं है, मिलावट ना करें तो कामयाबी नहीं है, खर्चा कैसे पूरा होगा, रिश्वत ना ले तो गुजारा नहीं होता। कौन सा मुसलमान है? शर्म से भूल मारा ऐसा मुसलमान। कब्र याद ही नहीं रही। अभी आप वोट देंगे
किस किस लालच में आप वोट देंगे, कौन कौन सी आपके, जिसको दिल लेते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बात कहता हूं कि जिसको भी वोट देना ये देख के देना कि क़यामत के दिन मैं इसी वोट में पकड़ा गया तो क्या हिसाब दूंगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह फरमाता है जर्रा बराबर भी नेकी होगी वो भी आनी है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर बदी होगी वो भी है ना। वोट तो बड़ा है, जर्रा नहीं है, इसका हिसाब देना है तुम्हें। हाँ, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। अपनी तरफ से आप इस्लाम के लिए देते हो, अपनी तरफ आप अल्लाह के लिए देते हो, आगे से नतीजा नहीं निकलता तो क़यामत के लिए ये तो उज़र होगा, या अल्लाह मैंने तो अपना हिस्सा डाल दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में अलाव में फेंक दिया गया। वो जो जब जल रही थी तो रवायात में आता है कि एक चिड़िया थी, चोंच में पानी लेकर आती थी, डाल के फिर भाग जाती थी। किसी ने पूछा उससे कि तेरी चोंच में जो कतरे आते हैं शायद वो तो नीचे आते होते, इतनी गर्मी ऊपर से ऊपर ही वो खुशक हो जाते हैं, बन के उड़ जाते होंगे। तो किसी ने पूछा तेरा क्या नतीजा होगा, क्या तेरे इस चोंच के पानी से ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा मुझे भी पता नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा नाम तो लिख लिया जाएगा ना बुझाने वालों में, मेरा नाम लिख लिया जाएगा बुझाने वालों में। अरे अपना नाम लिखवाओ, अल्लाह के दीन के वर्करों के लिए नाम लिखवाओ, ताल्लुक रखो, रिश्ता रखो, दोस्ती करो, वोट दो, नोट दो, दीन के लिए दो, दीन के लिए काम करो, ताकि कुछ तो इत्मीनान हो कि मैं दुनिया से जा रहा हूं। कुम तो जो याकूब मौत, लोगों क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त हुआ? काला माता या बुनय्या माता अबुदून मिन बादी, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों को इकट्ठा कर लिया। बच्चों मैं दुनिया से जा रहा हूं, मौत का वक्त आ रहा है, मुझे परेशानी है, पता नहीं मेरे बाद जायदाद का नहीं पूछा, कारोबार का नहीं पूछा, बताओ माता अबुदून मिन बादी, मैं अल्लाह के सामने जा रहा हूं, कम अज कम ये तो तसल्ली होगी कि अपने बच्चों को क्या तलकीन कर क्या हूं। बच्चों ये बताओ मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? माता अबुदून मिन बादी। कुछ फिक्र भी है हमें, ये अंबिया की फिक्र थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह इन बुतों की पूजा से मुझे और मेरी औलाद को बचा दे, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी फिक्र है अपनी औलाद की, याकूब अलैहिस्सलाम को भी फिक्र है आपकी अपनी औलाद की। दुनिया से जाते हुए भी अपनी ईमान की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं। और आप लोग हमारी खाली पक्की हो जाए, हमारी गली सही हो जाए, हमारा कब्जा प्लाट का मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारा तबादला हो जाए, जितना कम ज़रफ होगा उतनी ही घटिया डिमांड उसकी होगी। और दुनिया की डिमांड, सुन लो मेरी बात, अल्लाह ने फरमाया है कि अगर पूरी दुनिया की कीमत अल्लाह के एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी ना देता। ये दुनिया जितना दिल बड़ा से बड़ा इनाम मांग लो, अल्लाह के यहां इसकी कोई कदर कीमत नहीं। अल्लाह के यहां अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए। और फरमाया नकीमुद्दीन वला ततफर्रकू, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस दीन को कायम करो, इसमें इख्तिलाफ ना करो, फिरके ना डालो, जमातें ना बनाओ, ग्रोह ना बनाओ। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, आप इस्लाम की फजीलतें बयान करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे निजात नहीं है। जैसे खाना सामने रखा हो तो आप
آپ اس کی تعریفیں کرتے رہے، آپ کے سامنے کوئی کہہ رہا ہے یہ جی کھانا بہت اچھا ہے، بڑا مزیدار ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا انرجی والا ہے، اس میں وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، پروٹین ہے، یہ ہے، فیٹ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک آپ کھائیں گے نہیں اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جب تک اسلام کو آپ نافذ نہیں کریں گے اپنے وجود پر اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرو، اور ایک تو دعویٰ کر سکو گے یا اللہ میرے پاس میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اے اللہ، جب اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو، اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا جاؤ فلسطین پر حملہ کرو، تم حملہ کرو گے میں تمہیں فتح دے دوں گا، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ کا وعدہ کہ فتح دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے جنگ کرو، ان کو نکالو، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے، جب تم نکال لو گے نا دونوں پھر ہم آ جائیں گے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میں اور میرا بھائی حاضر ہیں، اب یہی ہم میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں؟ فَفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان فاسق ناہنجار اور ہمارے درمیان اللہ تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اسلام کے نام پر مر گیا ہے تو جناب 2000 قرآن ختم ہو گئے، اتنے ہزار کلمہ پڑھا گیا، اتنا لا الہ الا انت سبحانہ پڑھا گیا، اتنے ہزار درود پڑھا گیا، اتنے قرآن ختم ہوئے، اتنی توبہ استغفار ہوگی، اور اس نے اپنے وجود پر بھی اسلام کو نافذ نہیں کیا تھا، اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش بھی نہیں کی تھی، باقی قربانی تو دور رہی۔ حضرت امام حسین بھی تو زندگی گزار سکتے تھے، انہیں کون سی مجبوری بن گئی کہ اپنا گھرانہ پورا میدان میں شہید کروا دیا؟ دین تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرنا، اس میں فرقہ نہیں بننا، اس میں ٹولیاں نہیں بننی، جماعتیں نہیں بننی، دین کے لیے۔ کیونکہ انہیں نانے کا دین نانا نظر آ رہا تھا، ان کے باپ نے اور نانے نے تربیت کی تھی، انہوں نے نبی کا زمانہ دیکھا تھا، انہیں قرآن کی دین کی اہمیت کا اندازہ تھا، انہوں نے خاندان کو کچھ بھی نہیں سمجھا، قربان کر کے مثال بنا دی کہ دین کے لیے اس حد تک بھی بندہ جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھو، یہ عمل کے لیے کتاب آئی ہے، یہ جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، دم درود کے لیے نہیں آئی ہے، کتاب عمل کے لیے آئی ہے۔ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ جو کتاب کے حقوق ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر ہیں، ہر مسلمان پر قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا، اس پر ایمان لانا، یہ اللہ کی کتاب ہے، ایمان لانا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، ہمارا ایمان نہیں، میرا اور آپ کا، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور پھر اس کو پڑھنا جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت۔ کیا کہتے ہیں؟ الذین یتلون حق تلاوتہ، وہ جو اس کی تلاوت کر دے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا لفظی معنی یہ ہے کہ میرے آگے آگے قرآن چل رہا ہے، میں اس کے پیچھے عمل کرتا جا رہا ہوں، تلاوت کا لفظی معنی یہ ہے، یہ نہیں الحمدللہ مالک یوم الدین، یہ کون سا ڈرامہ ہے بھائی؟ سمجھ کر پڑھنا۔ فرمایا ایمان لانا اللہ کی کتاب پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اس کو تلاوت کرنا جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس پر عمل کرنا جیسا عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کی تبلیغ کرنا یہ دوسروں تک پہنچانا جیسا کہ تبلیغ کا حق ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا کہ صحابیوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو کیا جواب تھا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ،
ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، بلکہ ارے اس کی پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ 3 بار پوچھا اور اس کے بعد کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جائے یہ مان رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اے اللہ یہ مان رہے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی حساب لیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گے ان سے بھی حساب لیں گے۔ بھولے بیٹھے، حساب کتاب کا فکر ہی نہیں مجھے اور آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر، نفع نقصان دیکھ کر، کاروبار ہے، دوستی ہے، رشتہ ہے، نوکری ہے، تعلق ہے، سارا نفع نقصان دیکھ کر کیا کرو، بے وقوفوں جیسے فیصلے نہ کرو میرے بھائیوں۔ آج مغرب کی نماز کے بعد ناغہ ہے، آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مغرب کی نماز کے بعد حاضر ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔